मैं वज़ीर तालीम तहरीक पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मुसद्दरा नंबर 2022 को क़वाइद कार बलूचिस्तान असम्बली मजरियात 1974 के कायदा नंबर 85 के तकाज़ों से एग्ज़ेप्ट करार दिया जाए। کہ وفاق صوبائی حکومت کو اختیار آ رہا ہے، اس سے ہم ایگری ہے، لیکن 100 باتیں اس میں غلط ہے۔ اس میں آپ کے اسمبلی کے ممبران کو نکالا گیا ہے، سینڈیکیٹ سے ججز کو نکالا گیا ہے، باقی جتنے بھی یہاں پر پروفیسروں کی نمائندگی نہیں ہے، اسسٹنٹ پروفیسر کی نہیں ہے، طلباء کی نہیں ہے، اور یہ ایکٹ جو ہے نا بلوچستان یونیورسٹی کا اپنا ایکٹ موجود ہے، تربت کا اپنا ایکٹ موجود ہے، اس ایکٹ کا پاکستان میں کسی بھی جگہ یہ نافذ العمل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے آپ کیوں تجربہ کر رہے ہو؟ اگر آپ کر رہے ہو تو پھر اس کو سنیں، پروفیسرز کو سنیں، انتظامیہ کو سنیں، اپنا امپلائز کو سنیں، مزدوروں کو سنیں، اس کو سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کریں تاکہ اس میں تھارولی بحث ہو جائے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ کمیٹی کس لیے بنائی گئی؟ صدیقی صاحب چیئرمین ہے، اس کو حوالے کرو، یہ بلائے گا اجلاس ہفتہ 10 دن میں، اس سب کی باتیں سنیں گے، دوبارہ اسی سیشن میں اس کو لاؤ، اسی سیشن میں اس کو لاؤ۔ یا آپ ہمیں بھی سنیں، یہ بڑے جادوجہد کے بعد صوبائی خود مختاری ملی 18ویں ترمیم میں، اس میں پنجاب نے اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا، سندھ نے بنایا، KPK نے بنایا۔ ہم بلوچستان کی تمام جو اختیارات ہیں بلوچستان کے کیبنٹ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہی تقاضا ہے لوگوں کی، یہی تقاضا ہے اسٹوڈنٹ کی، یہی تقاضا ہے یہاں کے پولیٹیکل پارٹیوں کی۔ جہاں تک زہری صاحب کا پوائنٹ ہے، بعد میں اس میں ترمیم ہو سکتا ہے، اس ایکٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد الف کے بعد بے نہیں لکھا جاتا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں پہلے بھی 6-7 کمیٹی کے لیے مسودہ قانون سپرد کی گئی ہیں، ابھی تک ایک کا جواب نہیں آیا۔ اس میں کوئی ہچ نہیں ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو پاس کیا جائے، بعد میں جو اس کے ویلڈ پوائنٹ ہیں اس پہ بات کی جاتی ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں یہ صوبے کے پاس آتی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسے، کچھ محکمے ایسے ہیں کہ وہ فیڈرل کے پاس لیتی ہے۔ آپ کے یونیورسٹیز کو جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ HEC سپورٹ کرتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ انہوں نے فرمایا کہ صوبائی ہائر HEC بنائی گئی، ہمارے صوبائی HEC ابھی تک ہے ہی نہیں۔ جب یہ بنے گا تو پھر اس پہ ہم بیٹھیں گے، ہماری کمیٹی بیٹھے گی، اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طرح ہم اس سسٹم کو چلائیں گے۔ ابھی اس میں جو ہے ہمارے یونیورسٹیز کے جتنے بھی ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، ہمارے ججز ہیں، جس طرح رسول اللہ صاحب نے کہا، کسی کو پوچھا نہیں گیا ہے، اور اس پہ جو ہے تھوڑے سے تحفظات ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو جلد بازی میں اس کو منظور کر لیں کہ جی آؤ صوبائی خود مختاری ہے۔ صوبائی خود مختاری میں تو ہمیں اور کیا چیزیں ملی ہے، کس پہ عمل درآمد ہوا ہے، کتنے 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد ہے، ہمارے ریسورسز ابھی تک فیڈرل کے پاس ہے، ہمارے سائل وسائل پہ ابھی تک قبضہ جو ہے وہ فیڈرل کا ہے، کیا ان کو ہم نے ابھی تک آزاد کیا ہے کہ صرف ہم یونیورسٹی کو آزاد کر رہے ہیں؟ اس پہ ہماری بھی یہی تجویز ہے کہ اس کو جو ہے کمیٹی کے حوالے کیا جائے، اور کمیٹیز پہ غور کر کے اور اس کو بعد میں جو ہے ایک جامع صورت میں جو ہے اس کو پیش کر کے بالکل منظور کیا جائے۔ میں کوئی تقریبا وہ نہیں ہے سر۔ اپوزیشن لیڈر صاحب کو اور زیر صاحب کو، زمرک صاحب کو ہم یقین دلاتے ہیں جہاں پہ کمی بیشی ہے امینڈمنٹ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسی ٹائم کر لیں گے۔ ایک اچھا چیز آ رہا ہے میرے خیال میں، اس میں ہم سیاست نہیں کریں، اس کو اس کے سیاست نظر نہیں ہو، اور اس کو ہم اچھی طریقے سے کریں۔ اور باقی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ خدشات ہیں، جہاں کمی ہے، کمی تو دور کرنا اسی ہاؤس کا کام ہے اور کیبنٹ کا کام، وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ملک صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، تمام دوستوں یہ متفقہ اس کو فیصلہ کریں۔ اسد اللہ بلوچ صاحب کی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا۔ نہ ایکٹ اس سے پہلے میرے خیال میں ہماری قائمہ کمیٹی میں آئی ہے، نہ آج تک میرے خیال میں کوئی کیس قائمہ کمیٹی کوئی پینڈنگ میں پڑی ہو۔ قائمہ کمیٹی جو بنی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا بھی ہے اور کام کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اس کے مخالفت نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ بہتری کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بے شک ہر وقت ہر کسی کام میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے،
लेकिन मसला ये है कि पूरे हाउस को बाईपास करके एक्ट लाना और उसको पास करना ये सही नहीं है। कम अज़ कम इससे मुतालिक जो अफराद हैं, ख्वाह वो प्रोफेसर्स हो, ख्वाह वो एम्प्लॉइज़ हो, ख्वाह स्टूडेंट हो, ख्वाह आपके ये जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, पहले इस आपके सिंडिकेट कमेटी में इलेक्टेड मेंबर हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने इस तरह किया, ये एक्ट जो बन के आई है, पहले इलेक्टेड लोग इसको चला रहे थे, अब सिलेक्टेड रख दिए। तो बराए मेहरबानी इसमें कोई का बात नहीं, अगर कमेटी के पास एक केस चली जाए और वो एक हफ्ता 10 दिन में इसकी रिपोर्ट बना के आपको वापस टेबल कर तो क्या बात होगी। तो मेरी गुजारिश है कि इसको तहरीक पेश हुआ, आप मेहरबानी करें इस पे वोटिंग करा दें। सीएम साहब मेरे ख्याल से कहता हूँ यहाँ पे हमारी जमहूरी असम्बली है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं ये पठान है, ये बलोच है, ये हज़ार है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए एक हमारी रिवायती सूबा है, हमने अब अपने सबको एक एतमाद में लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अक्सरियत में हो और अक्सरियत में एक बिल पास हो जाए तो बस सही है, ये बिल्कुल इस पर हमें यकीन है, ये आइनी तरीका है, जमहूरी तरीका है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई 8-10 मेंबरों का या 15 मेंबरों का इतराज़ात है तो उसको सुन लिया जाए, उसको दूर किया जाए जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से, हमारे कबायली तरीके से, तो हम उसको हिमायत करेंगे। अगर इस तरह वोटिंग के ज़रिए करना है तो ये तो नहीं। एक मिनट, उस वक्त वो करे, फिलहाल आप मेहरबानी करें इस पे वोटिंग करते हैं, देखते हैं, फिर उस पे वो बाद में वज़ीर आला बनेगा तो उस वक्त उसका फिर हक बनता है वो कायदेवान साहब खड़े। स्पीकर साहब, जो आज जो आया हुआ है ये गवर्नर के बारे में, जो सर ये इसके में यूनिवर्सिटी के बारे में, ये सिर्फ मेरे सोच तक यानी बदनीति की बुनियाद पे ये कर रहा है। ये एक इख्तियारात गवर्नर के साथ है, सिर्फ ये पठान है और कोई मसला नहीं। मैं तो वो बात करता हूँ कि वो हकीकत होगा, मैं आपको वो बात करूँगा ताकि आपके ज़हन भी मानेगा। ये गवर्नर के साथ और क्या है बलूचिस्तान में, जब पाकिस्तान बना है गवर्नर के साथ ये इख्तियारात है, वज़ीर आला के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सूबे के इख्तियारात है। ये छोटा इख्तियारात वो भी उठा के अपने साथ रखते हैं। वो ये सब से मैं तो कैबिनेट में भी मैंने इसकी मुखालिफत की है, आज भी मैं कर रहा हूँ। ये गलत काम है, इसको इसी तरह रहने दे, जो पहले हुकूमत ने किया है इसी तरह रहना चाहिए, इसमें कोई हाथ नहीं लगाना है। मैं तो ना आज इसका मुखालफत आज भी करूँगा, मैंने कैबिनेट में भी किया हुआ है, मैं तो नहीं मानूँगा। मेहरबानी। तो ये 18वीं तरमीम के तहत ये चीज़ें सूबे को मिल रही हैं, इसमें किसी कौमियत की या किसी के अख्तियारात की बात ही नहीं है। हम सब भाई हैं, इस सूबे में रहने वाला हर मुझे बात कंप्लीट कर। ये छोटा सा आप हमें नहीं छोड़ रहे हो, आप छोड़ देना, वाला कि ये सारे बदनीति है, मैं जानता हूँ ये बदनीति है। हम अपने हक की बात नहीं कर सकते, अगर करते तो फिर हम गुनाहगार हैं। हम अपने हक की बात करते हैं, आप गलती की बुनियाद पर कर रहे हो। आपने मुझे फ्लोर दिया है, वो बोल चुके हैं। मेरा ईमान है कि बलूचिस्तान में रहने वाला हर शख्स, जितना मेरा हक है उतना एक पठान का हक है, इतना एक खेतरान का हक है, किसी हज़ारे का हक है, पंजाबी का हक है, सराइकी का। इस सूबे में रहने वाले बलूचिस्तानी हैं। हमने कभी भी ये चीज़ें नहीं सोची है। 18वीं तरमीम के तहत ये चीज़ें सूबों के हवाले की गई हैं। और जहाँ तक सवाल है कानून साजी का, ये आप बहैसियत चेयर आप भी इन चीज़ों के पाबंद हैं, हम भी पाबंद हैं। एक तहरीक पेश हुई है, उस पे राय शुमारी होगी, वोटिंग करा लें। अगर ये कमेटी के अक्सरियत कहती है कमेटी के हवाले हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अक्सरियत कहती है कि उसको एग्जेम्प्ट करके इसको पास किया जाए, वो तरीक़ाकार मौजूद है। एक एक चीज़ मौजूद है इस कानून में, तो इसमें किसी के साथ अब किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, ना किसी के अख्तियारात के जी। अब अगर ये बात है कि गवर्नर की बात करते हैं, तो गवर्नर कोई आइन में नहीं लिखा हुआ कि पश्तून होगा, या आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आला बलोच होगा। फिर तो बहैसियत खेतरान के मेरा भी हक बनता है कि मेरी कौम का गवर्नर बने। बहैसियत हज़ारा इनका भी हक बनता है और बन चुका है। जनरल मूसा यहाँ पे गवर्नर रहा है, उनका भी हक है।
پھر بحیثیت पंजाबी जो यहाँ रह रहे हैं उनका भी हक है कि वो गवर्नर बने या वज़ीर आला बने। ये हम डिवीज़न कभी ना करते हैं, ना हमारा ईमान है, ना ये चीज़ें करते हैं। एक अच्छी चीज़ है, आइन पाकिस्तान में अगर 1973 के आइन में 22 तरमीम हो सकती हैं, मलक सिकंदर साहब तो बहुत आला पाए के वकील हैं, तो वो अगर इन चीज़ों को 22-23 तरमीम हो सकती है आइन पाकिस्तान, जो सब चीज़ उस पर कायम है, तो क्या एक यूनिवर्सिटी एक्ट में अच्छी कोई तरमीम आती है? हम उनका साथ देने लगे हैं। लेकिन जो मिठा खान साहब ने वो डिवीज़न किया कि ये गवर्नरी शायद पठानों की कोई मीरास है, नहीं, यहाँ पे या बलोचों की कोई वजारत आला मीरास है, नहीं, ये ऐवान है। ये ऐवान पठान को भी मुंतखब कर सकता है, पंजाबी को भी मुंतखब कर सकता है, सराइकी को भी कर सकता है, सिंधी को भी कर सकता है, हज़ारे को भी कर सकता है। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। हमें बलूचिस्तानी, पहले नंबर पे बलूचिस्तानी, फिर पाकिस्तानी बन के रहना है। शुक्रिया केतरान साहब, तो आपका मौक़िफ़ आ गया। ये तहरीक पेश हो चुकी है, उस पर आप राय शुमारी करा लें, जो सिलसिला बनता है। सिद्दीकी साहब मुख्तसरन बात करें। बदकिस्मती तो इस सूबे की है कि जब भी कोई इस किस्म का एक्ट आता है वो इन मौके पे आता है, और इससे पहले भी ये एक्ट एक दो दफ़ा पहले आया, लोगों ने इसको पढ़ा, इसमें कमी बेशी अपनी जगह पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बाकी सूबों ने इसको अवेल किया, उनको ये इख्तियारात मिले हैं। अगर आज बड़ी देर के बाद, लेकिन अगर आज इस सूबे को ये इख्तियारात मिल रहा है, ये एक्ट में तब्दीली हो रहा है, बाकी रहा वो जो नुकात का दोस्तों ने कहा, पहले इसमें इसके सिंडिकेट में MPs की नुमाइंदगी थी, वो होनी चाहिए। जनाब कायदे आवान ने जो है इसकी ज़िम्मेदारी ले ली, और उसने इस फ्लोर पे वो कहा अगर स्टूडेंट्स की, एकेडमिक स्टाफ की, हम भी उसकी भी हिमायत करते हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इस फ्लोर पे उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई है। आज हम इसको पास करते हैं, वो कमियाँ जो इस फ्लोर पे कायदे आवान ने यकीन दहानी कराई है, बाद में उसको शामिल किया जाए। उसको शामिल करके हमें जो है जनाब स्पीकर साहब, हमें उससे इख्तिलाफ नहीं है, हम भी उन नुकात की हिमायत करते हैं जो ज़ेरे साहब ने किया है, जो हमारे अपोजिशन लीडर ने किया है, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, हम भी कहते हैं वो नुकात बाद में इसके अंदर शामिल किया जाए। जनाब स्पीकर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब यकीनदानी करा रहे हैं कि इसमें जो भी अमेंडमेंट होगी वो करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए वोटिंग करा दें आज। स्पीकर असम्बली में पेश करदा किसी मसौदा कानून बशमूल ऐसे हंगामी कानून के जो असम्बली में रखा गया हो, मुतल्लिका मजलिस कायमा को इन हिदायत के साथ सुपुर्द करेगा कि वो इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट इस तारीख तक पेश करे जिसका तयन स्पीकर करेगा। ये वाज़ेह तौर पर आपके पास इख्तियार है कि आप जनाब चेयरमैन कायमा कमेटी को आप रूलिंग दे दे कि 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करे। ये रूलिंग आप दे दे, 10 दिन के अंदर ये मीटिंग करेगा, सबको बुलाएगा और सबके इनपुट लेकर अच्छा बेहतर कानून यहाँ पेश होगा 10 दिन के बाद। इसमें क्या कबाहत है? इसमें कानून की बात है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर जो है ना उनके व्यूज आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी बेहतर तौर पे चलेगी, और इसमें जो खामियां 100 खामियां है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। वो 100 खामियां इसमें है। तहरीक पेश हुई है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसूदरा 2022, मसूदा कानून नंबर 2 मसूदरा 2022 को कवायद-उन-ज़बातकार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली मजरिया 1974 के कायदा नंबर 84 और 85(2) के तकाज़ों से एग्जेम्प्ट करार दिया जाए। जो इसके हक में है वो खड़े हो जाए। जो इसके हक में वो खड़े हो जाएं, जो इसके हक में वो खड़े हो जाएं। सेक्रेटरी साहब आप गिनती करें कितने लोग इसके हक। तहरीक मंजूर हुई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसूदा 2022, मसूदा कानून नंबर 2 मसूदा 2022 को कवायद-उन-ज़बातकार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली मजरिया 1974 के कायदा नंबर 84 और 85(2) के तकाज़ों से एग्जेम्प्ट करार दिया जाता है। मैं वज़ीर बराए महकमा तालीम तहरीक पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मसौदा कानून मसदरा 2022 मसदरा कानून नंबर 02 2022 को फिर फौर गौर लाया जाए। जो इसके हक में है वो खड़े हो जाएं। जो इसके हक में 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 वो खड़े हो जाएं
तहरीक पेश हुई है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसदूरा 2022 मसूदा कानून नंबर 2 मसदूरा 2022 को फिलफौर गौर लाया जाए। तहरीक मंजूर हुई बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसदूरा 2022 मसूदा कानून नंबर 2 मसदूरा 2022 को फिलफौर गौर लाया जाता है। वज़ीर बराए महकमा तालीम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसदूरा 2022 मसूदा कानून नंबर 2 मसदूरा 2022 की बाबत अगली तहरीक पेश करें। मैं वज़ीर बराए महकमा तालीम तहरीक पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसौदा कानून मुसद्दरा 2022 मुसद्दरा कानून नंबर 202 मुसद्दरा 2022 को मंजूर किया जाए। तहरीक पेश हुई है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसदूरा 2022 मसूदा कानून नंबर 2 मसदूरा 2022 मंजूर किया जाए। तहरीक मंजूर हुई बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मसूदा कानून मसूदा 2022 मसूदा कानून नंबर 2 मसूदा 2022 को मंजूर किया जाता है।